بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا دل کی بات. ویسے تو دل کی باتیں ہماری بریک میں بھی چل رہی ہیں اور یہ آپ کو بتائیے کہ میرے پاس بھی بڑا کم ٹائم ہوتا ہے کہ میں ان سے جتنی بھی باتیں کر سکوں, کیونکہ پھر آف کورس ہم سب نے وہی بزی ہو جانا ہے اور ہم پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے اپنے بزی روٹین سے باہر نکلنے کے لیے. تو جناب دل کی بات کے لیے لیجیے اوت کہ جو کہوں گا کہوں گی, دل سے کہوں گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی. میں جو کہوں گی کیا جو کہوں گی دل سے کہوں گی, دل سے کہوں گی, ورنہ نہیں کہوں گی. ہاں اس کے علاوہ ورنہ کہوں گی چپ رہوں گی. ہم یہ آنکھوں سے سمجھ لیں گے سارے. اچھا, پہلا سوال آپ دونوں سے ہے کہ زندگی میں وہ لوگ کیا یاد رہ جاتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو, یا پھر وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو؟ مجھے تو دونوں یاد رہتے ہیں. ہاں دونوں یاد رہتے ہیں, اور میرا خیال میں رکھنا بھی چاہیے. برائی نا زیادہ اوور ریٹڈ ہے حساب سے کہ بس وہ فیل ہوتی ہے انسان کو, اچھائی بھی فیل کرنی چاہیے. تو مجھے تو یاد رہتے ہیں جو اچھا بھی کرتے ہیں. مجھے بھی دونوں. اینڈ آئی واز گوئنگ ٹو ایڈ ٹو دیٹ کہ برائی پہ کہ دیکھیں forgiving is one and forgetting is another thing. تو آپ معاف تو کر سکتے ہیں اس انسان کو کیونکہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا یا ناانصافی کی تھی, زیادتی کی تھی. مجھے بھی یاد رہتی ہیں, بٹ میں دل سے کوشش کرتی ہوں obviously اپنی خاطر, اس کی خاطر نہیں, اپنی mental well being کے لیے کہ میں معاف کر دوں, میں وہ ٹاکسیسٹی اپنے باڈی میں نہ پالوں, because that makes you unwell. And I think it starts to show on your face also that you're a bitter person and you're holding, you know, resentments وغیرہ. So I think it's important to just say okay fine, we're done and forgiven but not forgotten. چلو ہاں معاف کرو اور آگے چلو, یہی کوشش کرنی چاہیے. کس شخص کا فون نمبر ڈائل لسٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے چاہے کوئی بھی اچھی بات ہو یا بری بات بتانی ہو؟ سب سے پہلے کس کو کال؟ اماں. ہاں میرا ایک رینج آف پیپل ہے. ہاں بھائی بھی ہیں, ابا ہیں. ابا ہاں عام طور پہ گھر کے لوگ یا میرے 2 فرینڈز ہیں بس, وہ ان کو جاتی ہیں. ہاں کوئی ایسا لمحہ جب خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں, وہ ٹائم کون سا تھا؟ بہت سے ایسے لمحے گزرے ہیں, بہت آتے ہیں. لیکن کوئی ایسا جو بھی یاد ہو کہ جس میں آپ مطلب کچھ ایسی چیز اچیو کر لی ہو کہ جس پہ یو نو, اب میں ان کے نام نہیں لے سکتی, لیکن آئی ہیو فیلٹ سو گڈ. اتنی مطلب گریٹیفیکیشن کی مجھے فیلنگ ہوئی ہے جب میں نے سوچا ہے کہ جی فلاں کے لیے فلاں چیز ہونی چاہیے یا اس کو یہ کرنا چاہیے. اب بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو فار انسٹنس وہ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا. اف یو کین بی ان دیٹ پوزیشن ٹو پرووائڈ دا موقع. اچھا سکسیس تو آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کسی کا بھی, کسی بھی فیلڈ میں, موقع کی بات ہوتی ہے اور پھر آگے اس کی صلاحیت. تو جب آپ دیکھتے ہو نا کہ وہ بندہ اب آگے گرو کر رہا ہے اور اس کی لائف میں وہ اچیومنٹ آتی ہے, تو مجھے بہت پھر آئی فیل کہ یار یہ ہے نا زندگی کا مقصد, یہ ہوئی نا بات. باقی تو دیکھیں چلتی رہتی ہیں چیزیں. آپ بتائیے. مجھے جو فوری طور پہ یاد آیا تھا وہ پچھلے سال ہماری بیٹی کی گریجویشن ہوئی تھی. وہ پرفیکٹ مومنٹ یو نو, گریجویٹڈ. اب کل کی بات لگ رہی ہے, آئی ریممبر شی واز گوئنگ ٹو کالج, یو ڈسکسڈ وذ می. بالکل. اور تو وہ ایک ظاہر ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے, اور وہ ہے بھی کیونکہ ملک سے باہر تھی, اکلوتی آپ کی اولاد, اکلوتی, تو وہ ایک اور قسم کا پرائڈ تھا اس کے وجہ سے ڈیفینیٹلی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. لیکن میرے کئی دفعہ آ جاتے ہیں. اچھی بات پہ آ جاتے ہیں. رونا حیات ہے. جب آپ زندگی میں جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ روتے, آپ نہ روتے تو ڈاکٹر سب پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں وہ مار مار کے رلاتے ہیں. ہاں مار مار کے رو, شروع زندگی مار مار کے. اگر نہ خود سے نہ رو رہے تو مار پڑتی ہے. مجھے بتائیں آپ کی بیٹی کے والے سے اگر وہ آگے چاہے, کیونکہ نہ صرف اس کے گرینڈ پیرنٹس اینڈ دین اپنے پیرنٹس اور اس کے بعد پھر گھر میں سے تائے وارا سائڈ اتنی ایگزامپلز ہیں, تو ان کا کوئی انٹرسٹ ہے آگے؟ زیرو. انفیکٹ نیگیٹو کی سائڈ, اس سے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں. تو انہوں نے کس چیز میں گریجویشن کی ہے؟ سائیکالوجی اینڈ ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں اس نے میجر کے ساتھ کی ہے. اب اسی سائڈ پہ جا رہی ہے. مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ اسے آنا چاہیے اس میں. اف شی وانٹیڈ ٹو کم تو ضرور 100 بسم اللہ, لیکن شی ہیز نو انٹرسٹ. بحث کر کے جیتنا اچھا لگتا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ سامنے والا جو بھی کہے وہ بس ٹھیک ہے, میں نے بحث نہیں کرنی؟ نہیں, بحث کر کے جیتنے میں جو مزہ ہے وہ تو نیکسٹ لیول سیٹسفیکشن. سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے نا اسی کے لیے تو بحث ہوتی ہے. You want to have the last word. بالکل گھر تک پہنچا کے ذرا کہ آخری لائن میری ہوگی. انسان کی ایک فطرت ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن ہاں بحث
बहसों से ना लोगों को कई दफा ये लगता है कि बात बहुत गर्म हो जाएगी और एक हमेशा हीटेड आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है, बहस One can बहस agree to disagree. वो भी आराम से हो सकता है कि आप उसमें परेशान ना हो, बात करें। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बहस की ना नेगेटिव कॉनोटेशन है, बल्कि ऐसा नहीं है। अब बात करें एक्चुअली बहस जो है वेस्ट में तो बहुत encourage की जाती है। Encourage की जाती है। डिबेट It's a debate, yes. डिबेट इज बहस। हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका है, इसका है, एंड देन दैट्स हाउ यू ग्रो। which is important। हाँ है ना, आप सिंगल टनल विजन में तो नहीं आपको चलना चाहिए, आपको दूसरों की सुननी चाहिए। तभी उतना अक्सर ऐसा होता है, लेट्स टॉक इट आउट, बैठो आओ आगे बैठो, बैठो, let's बात करें discuss। हम। लोगों की बेतकल्लुफी को आप पहचान लेते हैं या बाद में पता चलता है कि जो नजर आ रहा था ना वैसा नहीं है? मैं यूं पहचानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वाइब पकड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वाइब पे हाँ। हाँ, तो मैं, और अक्सर हमारे फील्ड में खास तौर पे, क्योंकि हम आए दिन डिफरेंट सेट्स पे होते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ आपका वास्ता होता है, और डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट एनर्जीज के साथ लोग आते हैं, और कई दफ़ा आपके जूनियर एक्टर्स भी होते हैं, आपका क्रू के लोग होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, तो यू हैव टू बी अ लिटिल यू नो savvy जिसे कहते हैं, क्योंकि वरना वही बेतकल्लुफ हो जाते हैं लोग, फिर आपको बुरा लगता है, फिर आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, फिर आपका दिल नहीं लगता काम में, आप वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो अपनी आई थिंक फॉर माई ओन सेल्फ डिफेंस मेरा मैकेनिज्म है ये कि मैं जरा वॉल्स रखती हूँ, पीपल आई ट्रस्ट, आई नो कि हाँ यहाँ ठीक है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग टू डू। मैं भी रखता हूँ और एज एन एक्टर क्योंकि आप ज़ाहिर ऑब्जर्वेंट भी होते हैं, तो मैं भी काफ़ी जल्दी गेज कर लेता हूँ। मुझे फेक लोग पसंद नहीं है, आई कांट गेट अलॉन्ग, मतलब आई विल बी नाइस टू देम बट सेट की हद तक। और लोग बेतकल्लुफी को ये भी समझते हैं कि इतना बढ़ा दो, इतनी भी बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती है। ओवरनाइट आप फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं, वो भी इस उम्र में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलते हैं, ओ जान जान, अरे भाई जान जान नहीं सकता भाई, जान तो बड़ी पर्सनल टर्म है, बड़ी पर्सनल बात है। मैं क्यों किसी को कह दूं कि भाई जान जान, ये तो मेरी जान है, अरे ये तो मेरा, आई लव यू आई लव यू यार, हमारी लव यू यार क्या मतलब, ये एक खास अल्फाज है, इसका एक तकद्दुस है, इसका कोई मतलब, इसका एक मोमेंट है, इसका एक अपनी जोन है। किसी को भी आप आई लव यू कहते फिर रहे हैं और आप उसको शैलो कर रहे हैं ना उस बात को, इफ यू आर जस्ट सेइंग इट टू एवरीबॉडी अक्रॉस द बोर्ड विदाउट मीनिंग इट। तो मैं भी आमतौर पर पहचान जाता हूँ और मेरा ख्याल में मेरा अंदाजा ठीक होता है आमतौर पर लोगों के बारे में। अच्छा, आपके लिए दूसरों की राय कितनी अहम है, चाहे वो काम के हवाले से हो या वो आपके घर के किसी मामले के हवाले से हो, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी सोचे कुछ भी कहें? मुझे फर्क तो पड़ता है, मैं हर्ट भी हो जाती हूँ कि ये क्यों ऐसे सोच रहा है, या इसने मेरे बारे में कोई तनकीद जैसे हो, तो सारी बात आई विल थिंक अबाउट वेरी इट, नेचुरल, हाँ, बट आई विल नॉट टेक इट टू इतना भी हार्ड। सो आई वुड से अबाउट 20-25%, अगर परसेंटेजेस पे हम क्वांटिफाई कर रहे हैं इस बात को, जो क्वांटिफाइबल नहीं है, लेकिन इतना थोड़ी सी है भी, और इतनी भी नहीं है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए या मेरी जिंदगी एंड हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं भी इतना लाइट वेट नहीं हूँ कि किसी ने कुछ कहा तो मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कई लोगों का अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि दैट हर्ट्स मोर, और आई होप एंड विश के लोग इस चीज़ का ख्याल किया करें कि अल्फाज ही हैं जो दूसरे पे, टोन भी समटाइम्स, हाँ टोन भी मैटर करती है, टोन, बदतमीजी की टोन, इतनी सारी चीज़ें हैं जो दिल पे असर करती हैं, वो बुरा होता है। वरना ठीक है, कोई एतराज़ कर रहा है या किसी की अपनी टेक है तो ठीक, सही। आपको किन चीज़ों पर जल्द गुस्सा आता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इसका कोई हल नहीं है, ये बता दें? झूठ, अगर कोई मुझसे झूठ बोले या झूठ वैसे ही बोल रहा है सेट पे या वैसे भी कहीं भी दुनिया में, मुझे आग लग जाती है, और मुझे एक्चुअली रेज में मैं चली जाती हूँ, और मुझे बड़े मुश्किल से अपने आप को फिर समझाना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं कई दफा हार्श भी हो जाए, कन्फ्रंट मैं तो बंद ही कर देती हूँ ना दरवाजे पे, जैसे कि बस खत्म बात, यहीं पे तो खत्म हो गई बात, बस अब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं स्टक हो जाती हूँ उस मोमेंट में, अब तो झूठ बोल दिया ना किसी ने, तो अब तो मतलब खत्म हो गई जिंदगी, अब तो कुछ आगे हो ही नहीं सकता, क्या मैं बात करूँ। So मेरे it's a stumbling block for me that when people lie or they are dishonest in any way, I think it's just a deal breaker. वो सर, हाँ, आप बताइए आपको किस बात से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? बदनीयती मुझे नहीं पसंद, बदनीयती, मतलब झूठ इज़ वन थिंग, लेकिन आई वुड से बदनीयती, लोगों की कई दफ़ा नीयत अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे आप इवन एज एन एक्टर आप काम कर रहे हो, मेरा ख्याल में नीयत अच्छी और साफ होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आजकल की जनरेशन को शादी का फैसला करते हुए आप लोग किन 3 चीज़ों का मशवरा देंगे कि वो ये 3 चीज़ें अपने स्पाउस में लाजमी देखें?
should I go हाँ हाँ दोनों हाँ I think more than love, एक लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी का है रिस्पेक्ट, किसी की एहतराम करना, क्योंकि जब आप जेन्युइनली किसी को रिस्पेक्ट करेंगे दिल से, तो फिर आप उसको हर्ट नहीं करेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आप उसकी इज्जत दूसरों के सामने भी संभाल के रखेंगे, आप खुद भी जब आपको नाराज़ भी हैं किसी बात पर, आप उसको बेइज्जत नहीं करेंगे. सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, मोर देन कि मैं बड़ा इश्क करता हूँ तो आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, यू नो, वो तो चलो शायद कर भी दे एक आध दफा, लेकिन फिर आगे क्या होगा, यू नो, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी रिस्पेक्ट तो आपको चाहिए लाइफ में, लेकिन आपके कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, ये तो लाजमी बात है. जब दो लोग इकट्ठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, बट इफ यू कैन रिस्पेक्ट ईच अदर एंड यू नो वी अग्री टू डिसएग्री, थोड़ा टाइम ले लें, तो ये आप, सो आई थिंक फॉर मी जस्ट दैट शुड बी द प्रेमिस दैट वी रियली रिस्पेक्ट ईच अदर. ठीक है, एक रिस्पेक्ट हो गया, दूसरा नहीं बस काफी है, बस रिस्पेक्ट काफी, बाकी तो फिर चीजें विल फॉलो. आप बताएं. मुझे ये लगता है कि शादी करते हुए ना लोगों को ऑफ कोर्स प्यार और कनेक्शन तो बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल में वैल्यू सिस्टम एक होना चाहिए. या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वरना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर मुझे लगता है पार्टनर चूज़ करते हुए ये भी देखना चाहिए कि क्या वो इंसान आपको जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करने को तैयार है. वो नहीं करते. एवरीवन वांट्स टू चेंज यू, हाँ, कि तुम वो बन जाओ. तो व्हाई डोंट यू नो लव मी और लाइक मी. लोगों को यहाँ ये ख्याल मेरा ख्याल में सोचना चाहिए कि यू नो योर पार्टनर शुड लव यू फॉर व्हाट यू आर. और तीसरे एक और चीज़ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि पार्टनर का ना ऐसा सोचना कि यार जो इसके लिए ज़रूरी है ना वो इसे करना चाहिए. उस चीज में सपोर्टिव, वो मेरा ख्याल में वो भी बड़ा जरूरी होता है. ये आपके ख्वाब, that's how you grow together. नहीं, और आप दूसरे के जो ख्वाब हैं उनको आप, वो आपके लिए भी उतने इम्पोर्टेंट होने चाहिए बिल्कुल कि यार इसका ख्वाब पूरा हो जाए. वो मेरा ख्याल में 2-3 चीजें ट्रू लव. नहीं, अगर मैं तो कहती हूँ कि और इतनी अच्छी आपने वाकई टिप्स दिए हैं, ये बहुत मैटर करता है. ये भी तो हर इश्क में जब डुबकी लग जाती, बाकी चीजें नजर नहीं आती ना, तो वही डूब के मर जाते हो. देख लिया एक छोटी सी चीज और मेरा ख्याल में सेंस ऑफ ह्यूमर भी कनेक्ट करना चाहिए. ओ ये ओहो, मैं तो कहती सो इम्पोर्टेंट ऑन डेली बेसिस. क्योंकि देखो अगर गुर्बत के दिन आ गए या कोई मुश्किल वक्त आता है तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही आपको बचा लेगा उस सिचुएशन में. यू कैन लाफ अबाउट इट, बट इफ यू गोना बी ऑल द टाइम देन जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है. हंसना बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, ये मेरे भी बड़ा होता है कि भी उसको ना आपको हंसाना आना चाहिए, आपको ये बंदे के साथ भी होना चाहिए. क्या माँ बाप के सख्त फैसले हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, या आपको लगता है कि माँ बाप कभी कभी सोसाइटी के प्रेशर में भी आके ज्यादती भी कर जाते हैं? जी बिल्कुल, आई एग्री. हाँ, कर जाते हैं कभी कभार, और फिर बाद में मानते भी हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं. मेरी अपनी सिचुएशन में ये हुआ कि माई पेरेंट्स लेटर अग्रीड कि यू नो हम थोड़े से डर गए थे क्योंकि तुम वही लड़की भी हो, फिर आगे फ्यूचर जो है, खासतौर पे जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये इंडस्ट्री उतनी डेवलप भी नहीं थी और फाइनेंशियली आप इतने साउंड नहीं हो सकते थे उस ज़माने. और हमने आई थिंक पैसों के लिए तो कभी काम किया ही नहीं था शुरू में, वो तो बहुत बाद में हुआ. So obviously my parents were concerned and they were concerned as to you know how society would see me etc etc. और बाद में उन्होंने कही ये बात कि हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें पता था तुम ठीक हो whatever वो हैं, बट सो हो जाता है कभी सख्त, यू नो, उनके फैसले होते हैं, बट बाद में उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि बट ठीक है तुम सही कर रही हो, करो. बाद में वही लोग बहुत सपोर्टिव. माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी, माय फादर्स पास्ड अवे बट माय मदर एटसेट्रा वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाट आई डू. आप बताइए अली. कर जाते हैं पेरेंट्स सख्त फैसले, और मैं पर्सनली ना इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जो ज़िंदगी के बड़े फैसले हैं ना वो पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं. वो एक गलत सोच ही गलत है. वो आपके अपने फैसले. हाँ, बचपन में ज़ाहिर है वो आपके फैसले कर रहे होते हैं कि आपके स्कूल में जाएंगे वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, लेकिन वंस यूर एन एडल्ट तो फिर तो आपको लेने हैं फैसले. हाँ, हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है
के फैसले फोर्स कर दिए जाते हैं शादियों में, कहाँ क्या बनना है, उन चीज़ों में बहुत फोर्स करके तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, चाहे उसमें वो सलाहियत या इंटरेस्ट है या ना नहीं हो। है। अब ये आप देखो गलत, अब उसमें प्रोफेशन में जब डालोगे तो ना वो एक्सेल करेगा इंसान, क्योंकि वो रिजेंट करेगा, वो उसका दिमाग ही नहीं चलता शायद उस प्रोफेशन में। बिल्कुल उसको उसकी पसंद की प्रोफेशन में डालो, उसमें वो जीनियस बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। एक्सेल कर वही इंसान एक्सेल कर जाएगा। कितना हॉरिबल प्रेशर है बच्चों पे ऐसा। बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ हम लोग जो बच्चों के साथ करते हैं ना, उनसे एक्सीलेंस की एक्सपेक्टेशन, वेरी बैड, उसके इतने नंबर आए, तुम डफर। क्योंकि माँ बाप एट टाइम्स मुझे लग रहा था बच्चों का ऐसे प्रोजेक्ट पाल रहे थे कि हमने प्रोजेक्ट लोगों के सामने रखेंगे, ये देख रहे हैं आप। मतलब कंपैरिजन तो भाई बहन भाई के दरमियान भी बुरा है, सबके दरमियान बुरा है, लेकिन वही जो मैं प्रोजेक्ट की बात करी थी, वो पहले जमाने में जब बरी दिखाते थे ना ऐसे, तो ऐसा लगता है बच्चे भी आप ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा किया है, इसको ये अवार्ड मिला है, इसने ये, अरे भाई। हाँ अच्छा जी, आस्तीन के सांप होते हैं या नहीं? होते हैं। कहीं मुलाकात हुई आपकी किसी आस्तीन के सांप से? आजकल मैं सुन रही हूँ। कैसे होते देखने में, मुझे बताएं। देखो देखने में तो बड़े मासूम होते हैं और आपके फ्रेंड्स भी वो बन रहे होते हैं ना, तो मैं सुन रही हूँ मेरे अभी एक हालिया सेट पे जहाँ मुझे अभी जाना है, काम करना है, तो एक कैरेक्टर है वहाँ पर, उनके बारे में मुझे ऑलरेडी वार्न कर दिया गया है कि वो ये करती है, आस्तीन के सांप, हाँ, कि वो पहले सबके साथ अग्री होता है फिर नहीं होता, और हाँ तो देखते हैं, अब जाऊंगी तो पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात है ना, आपको पहले वार्न कर मुझे हाँ कहीं से पता चला कि ये वहाँ हो रहा है। हाँ वहाँ एक आस्तीन का सांप फिर रहा है, आजाद फिर रहा है। आप बताएं, आस्तीन के सांप होते हैं? होते हैं मेरा ख्याल में, मैंने बहुत ज्यादा इनकाउंटर एक्सपीरियंस नहीं किया। आप तो बड़े लकी हैं फिर, आपके किसी आस्तीन के सांप से। क्योंकि मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं बना लेता कि बस इस इंसान से ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, जो मेरे ट्रस्टेड लोग हैं वो मेरे बहुत खास लोग हैं, जिस दिन वो बिट्रे करेंगे वो मैं टूट जाऊंगा, जाहिर है। लेकिन आई थिंक आपको कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए कि आप जिन पे अंधा एतमाद करें और जिनसे जुड़ के रहें। भाई ये जो आस्तीन के सांप होते हैं आपके बहुत ही करीबी दोस्त ही होते हैं, इधर ही होते हैं। अच्छा मेरे आस्तीन में सांप तो नहीं, ब्रेक बैठी है छोटी सी, मुझे ब्रेक नहीं, ब्रेक